Hello students, once again welcome back in this study English study channel. And in this chapter, in this revision, you can say we are going to start a new chapter that is a very burning chapter. And because of this chapter you can use your language very well, you can make your sentences correct, you can just get the very common errors which you makes during your explanations, during your speaking English. So in this chapter we have a lot of solutions of our problems while we are speaking English. Okay, so before coming on the topic, first of all I would like to clarify one thing. The name of this topic is subject verb agreement. Subject verb agreement. As you all know that in any sentence there is certainly a subject as well as verb, and both are agree with each other. If in a sentence subject and verb is not agreeing with each other, then surely we can say that sentence is not going to be correct. Surely the sentence would be incorrect. मतलब अगर हम कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखें तो हमारे दो चीज़ ज़रूर मिलते हैं, एक सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब, और इन दोनों का एग्रीमेंट एक दूसरे से होता है. मतलब अगर सब्जेक्ट एग्री नहीं करता है वर्ब से या फिर वर्ब एग्री नहीं करता है सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस ज़रूर ज़रूर और ज़रूर गलत है. मतलब दोनों को एक दूसरे से एग्री करना ही पड़ता है. तो इस चैप्टर में हम लोग वन बाय वन करके सारे रूल्स को समझेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है, इसको मैंने बहुत सारे स्लाइड्स में बनाया है. आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर इन मेनी स्लाइड्स. सो लेट अस स्टार्ट आवर दिस very burning chapter, and you can see here that I have prepared this chapter very well. So move on. First thing, that what is an agreement. Agreement होता क्या है, सबसे बड़ी चीज कि what is an agreement. Okay, so when two persons are agree to each other about any condition is called agreement. Suppose that जब दो आदमी होते हैं तो वो दोनों से एक दूसरे के शर्तों से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तब उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं. मतलब सपोज दैट अगर आप लोग दो फ्रेंड हो, एक फ्रेंड आपकी बातों से एग्री करता है तो आपके जो रिलेशनशिप हैं बड़े ही अच्छे चलेंगे. अगर दूसरा फ्रेंड आपसे एग्री नहीं करता है तो आपके रिलेशंस जरूर टूट जाने हैं. यदि आप एग्री नहीं करते हो उसके कंडीशन से तब भी रिश्ते टूट जाते हैं. और अगर आप भी उसके रिश्तों से, कंडीशन से, शर्तों से अगर आप लोग एग्री करते हो और वो भी आपके शर्तों से एग्री करता है तो आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे से चलेंगे, मतलब सही रहेंगे. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट थिंग. Subject verb agreement. What is the definition of subject verb agreement? Okay, so here is the definition I am just showing in front of you. You can write down also in your copies. To make any sentence grammatically correct, to make any sentence grammatically correct, its verb must be agree with subject in numbers. मतलब किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, इसके वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर्स के साथ, जैसे सब्जेक्ट्स इन नंबर्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. सब्जेक्ट इन नंबर्स का मतलब हुआ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को भी लगाना पड़ता है. यू कैन सी हियर, इफ इन एनी सेंटेंस देयर इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सो वी यूज, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, थोड़ा सा SIN जो है इसमें छिप गया है. सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में आता है, if in any sentence singular number subject is there, then we also use the singular number verb. And second thing, if there is the plural number subject is used in the sentence, then we will also use the plural number verb. So this was the slide number 2, and in this slide you can see here that I have given the two examples. First example, he reads the book. He is the singular number subject. Now listen and you can note down. ठीक है ना, you can note down.
ही, ये जो ही है, ही, देखो ही इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने रीड, रीड मीन्स हमारा जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब में हमने एस या ई एस लगा दिया, ये भी हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अगर यहीं पर ये यू होता, वाई ओ यू, तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता। एंड विथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी यूज द प्लूरल नंबर वर्ब, तब यहाँ पर हमारा एस नहीं होता, यू रीड द बुक होता, और ही है, मतलब ये दोनों इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, और दूसरा हमारा वर्ब क्या हो गया, रीड्स हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट थिंग, second you can see here, they go to school, they is the plural number subject, and go में अगर हमने एस या ई एस जोड़ा होता तो हम कह सकते थे कि हमारा वर्ब जो है सिंगुलर नंबर है, बट हमने एस या ई एस नहीं जोड़ा है, तो दे भी क्या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और गो जो है प्लूरल नंबर वर्ब हो गया। मतलब ऊपर वाला जो रूल्स है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एरो है, फिर सिंगुलर नंबर वर्ब, मतलब पहले वाले एग्जाम्पल में, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल देयर इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एज वेल एज फॉर दिस एग्रीमेंट, इसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट भी है, और दूसरा जो है रूल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज आल्सो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दे इज द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, एंड गो इज द प्लूरल नंबर वर्ब। लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, some steps to understand I have made with my full labor, with my full practice, these 8 bubbles. You can say bubbles are the circles, okay, not bubbles, these are 8 circles, okay. My dear students, one thing that is going to be very doubtful for you, that verb, what is verb? आप लोग सिर्फ कम, गो, फास्ट, मतलब एक्शन वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच हैव एक्शंस इज कॉल्ड वर्ब्स, सिर्फ उसी को आप लोग वर्ब नहीं समझना, यहाँ पर इज, एम, आर, डू, डज मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी आप लोग वर्ब्स में ही समझना, ठीक है। सो इफ देयर इज द ही, देन प्राइमरी वर्ब ऊपर है, इज होगा, आई है तो एम होगा, यू है तो आर होगा, सी है तो इज होगा, मतलब ही, सी, नेम, ये जब भी आते हैं तो हम इसको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब इज लगाते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगाते हैं। टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू ऑल हैव स्टडीड टेंसेज इन द फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें सब ज्ञान हो गया होगा, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द टेंसेज। सेकेंड है राम गोज, यहाँ पर गो क्यों नहीं है, वाई नॉट वी हैव यूज ओनली गो, why we have added s or es, because we have to make the verb in singular number, because its subject ram, its subject ram is also a singular number. Sorry, they come, they is the plural number subject, so we have not added here s or es, so they come. C reads, यहाँ पर C आ गया, C is the singular number subject। अब हमने रीड, तो हमारा जो मूल फॉर्म होता है ना, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है रीड का, रीड ही होता है, बट हमने एस या ई एस ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया है, ताकि हम इसको ही सी के अकॉर्डिंग इसको एग्री कर सकें, और ये एग्री हो गया, एस हमने लगा दिया, तो मतलब ये सिंगुलर नंबर हो गया। वी रीड, वी इज आल्सो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, दैट इज वाई हियर इज द प्लूरल नंबर वर्ब। नेक्स्ट स्लाइड, रूल नंबर फर्स्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, next slides is going to be very important for you all, because I have explained the subject verb agreement in following 5 or 6 rules, okay. So rule number first, which is also given in your book, if you will try to learn by yourself, when you will do the exercise and the worksheets of subject verb agreement, then these rules is going to be very important for you all. So please look here, singular number subject, this is the formula, singular number subject प्लस, प्लस मीन्स एंड, एंड क्या है, एंड हमारा कंजक्शन है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट टू, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट टू, और दोनों ऐड हो जाते हैं एंड से, ठीक है ना। मतलब राम, सपोज दैट एक सेंटेंस में बना रहा हूँ, अभी इसमें भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जब आए किसी भी सेंटेंस में, एक और दोनों सेंटेंस सिंगुलर नंबर ही हों, जैसे राम,
और श्याम। और मीन्स एंड, एंड क्या हमारा कंजक्शन है, एंड से ये दोनों नेम जुड़ रहे हैं ना, बोथ नेम्स आर बीइंग एडेड हियर विद द हेल्प ऑफ द कंजक्शन एड। यहाँ पर प्लस में मैंने एड को, एंड को लिखा है, ठीक है ना। तो दोनों मिल करके प्लूरल वर्ब को अग्री करते हैं। मतलब अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, दो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं, तो ये प्लूरल नंबर वर्ब्स को एग्री करेंगे। ये नहीं कि हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक है और दूसरा भी सिंगुलर नंबर, मतलब दो हो गए ना, तो अब ये दो प्लूरल को रिप्रेजेंट करेंगे। हियर आल्सो यू कैन सी व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड देन वी यूज प्लूरल वर्ब। ये वाला जो है प्लूरल वर्ब कौन सा है, मैं एक बार आपको लिख करके दिखा दूं। यस, ये हमारा प्लूरल वर्ब, ठीक है, रेड प्लूरल वर्ब है, ठीक है। मतलब अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, तो दोनों में हम लोग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल नंबर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर, ओके। नेहा, नेहा फर्स्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड, ये देखिए एंड यहाँ पर है एंड। और दूसरा है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट टू, ये वन था। नेहा जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वन है और ऋतिक जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट टू है। मतलब नेहा ऋतिक दो सब्जेक्ट्स हैं ना, और दोनों ये एड के द्वारा एंड हुए हैं, ठीक है ना, दोनों एंड के द्वारा एड हुए हैं। अब यहाँ पर हमने प्लूरल नंबर वर्ब का यूज़ किया है। ये प्लूरल नंबर वर्ब हुआ हमारा आर, ठीक है ना, मतलब यू के साथ आर कर रहे थे, ठीक है। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एवर टू सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स आर यूज्ड एंड एडेड बाय द कंजक्शन एंड इन एनी सेंटेंस, देयरफॉर वी यूज द प्लूरल नंबर वर्ब। वेरी गुड। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज ऑल। लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 2, आई होप दैट सबने समझा होगा रूल नंबर फर्स्ट को अच्छे से। रूल नंबर 2 में क्या है, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय आइदर आर। माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल नोट डाउन, ये जो आइदर आर है, नेदर नार है, बट आल्सो है, नॉट ओनली है, ये चार चीज़ें, फोर थिंग्स, ये सारी कंजक्शंस व्हेन एवर यू विल रीड द पार्ट्स ऑफ स्पीच तो उसमें ये आते हैं कंजक्शंस में। कंजक्शंस में एंड भी आता है, विथ भी आता है, एज वेल एज भी आता है, सो ऑन भी आता है, आफ्टर भी आता है, बिफोर भी आता है, ठीक है ना, और पहले वाला जो एंड था वो भी आता है। लेकिन अगर उन कंजक्शंस में ये चार टाइप्स के कंजक्शंस होते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ these four kinds of the conjunctions are used in any sentence, then what kind of the verbs we can use। मतलब either are। मैं फिर से एक बार यहाँ पर मार्कर ले लेता हूँ, लेट मी टेक वंस अगेन द मार्कर, पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है। when two are more singular number subject, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ज्वाइन बाई आइदर आर, मतलब आइदर आर से ज्वाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, या फिर नाइदर नार से ज्वाइन होते हैं, या फिर बट आल्सो से ज्वाइन होते हैं, या फिर नॉट ओनली से ज्वाइन होते हैं। कितने कितने कंजक्शंस हो गए, चार। आइदर आर, नाइदर नार, बट आल्सो, नॉट ओनली, मतलब दो सब्जेक्ट से दो हों या दो से ज़्यादा हों, दो भी हों तो भी, या दो से ज़्यादा हों, और वो सब सिंगुलर नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, देन वी यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वर्ब होना चाहिए था, ठीक है ना। देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर ये तो रूल नंबर 1 इसमें से था, रूल नंबर 2 का ये था कि अगर आइदर आर आ जाए, नाइदर नार आ जाए, बट आल्सो आ जाए, नॉट ओनली आ जाए, और वो सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग वहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज, नेक्स्ट है, इफ़ द सब्जेक्ट इज, आप सभी लोग पढ़ रहे होगे मेरे साथ, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर आर प्लूरल बोथ, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये भी होता है ना कभी कभी कि उसमें आइदर आर भी हो, नाइदर नार भी हो, बट आल्सो भी हो, नॉट ओनली भी हो, और हमारा सब्जेक्ट सिर्फ सिंगुलर ना हो,
बट या आल्सो के साथ हमारा सब्जेक्ट या तो सिंगुलर या प्लूरल या दोनों ही प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे, आर प्लूरल बोथ, देन वी यूज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लैटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तब हम लोग लैटर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब्स को यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमारा लैटर बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आता है, अगर वो प्लूरल नंबर है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, सी हियर फॉर वन एग्जाम्पल, आइदर डेविड और स्नेहा वॉज प्रेइंग फॉर यू, या तो डेविड या स्नेहा तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। डेविड आइदर भी इसमें है और भी है, आइदर और आ गया, और ये आइदर और किसको किसको कनेक्ट करे, डेविड और स्नेहा को, डेविड एंड द स्नेहा, डेविड इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, स्नेहा इज आल्सो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो दोनों ऐड हुए हैं आइदर आर से, बोथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स आर एडेड बाई आइदर आर, ये कंजक्शन है। तो हमने बोला था कि जब दोनों सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आइदर आर बट आल्सो नॉट ओनली एंड नाइदर नार से जुड़े तो वहाँ पर हमें सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पर सिंगुलर नंबर वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को वॉच को यूज़ किया, हमने वर्ब को यूज़ नहीं किया। वर्ब को यूज़ हम तब किए होते जब यहाँ पर दोनों प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते तो। ठीक है, अब दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। लेट अस कम हियर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल एक्चुअली ये भी सेकेंड रूल नहीं है, ये इसमें बस मैंने नाइदर कर लिया है, नाइदर नॉर कर लिया है। ठीक है ना, सेकेंड रूल का एग्जाम्पल ये है, नॉट ओनली योर ब्रदर बट ऑल्सो योर फ्रेंड्स वे आर फाइटिंग टू मी। नॉट ओनली योर ब्रदर, माई डियर स्टूडेंट्स हियर, सॉरी यहाँ पर हम लोग वो लेते हैं। ठीक है, नॉट ओनली है बट आल्सो है। ठीक है, ये दोनों कंजक्शंस भी हैं, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि हमारा वर्ब कैसे लगेगा। तो ये पहला हो गया सब्जेक्ट योर ब्रदर, और ये हो गया दूसरा वाला सब्जेक्ट योर फ्रेंड्स। तो मैंने कहा जब नॉट ओनली बट आल्सो दोनों आए और उसमें सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स आ जाएं तो लेटर मतलब बाद वाला, तो ये बाद वाला योर फ्रेंड्स जो है बाद वाला सब्जेक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब लगाया है या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लगाया WERE, वर्ब मतलब प्लूरल नंबर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेटर नंबर के अकॉर्डिंग लगा दिया है। सो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू एंड लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में है, फर्स्ट बॉक्स में है, अगर ये सारे वर्ड्स आ जाएं आइदर, नाइदर, ईच, मेनी, एवरीवन, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आपको कहोगे कि सर पीछे वाले स्लाइड में तो आपने बताया कि आइदर, आर, नाइदर, नार के साथ हम लोग सिंगुलर नंबर या फिर उसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो फिर ये क्या है? तो ये बेटा ये है कि ईच ऑफ यू इज, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, सॉरी। हाँ, इसमें ये है कि जब भी ये आइदर, नाइदर किसी भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करें, किसी एक पर्सन को, ईच ऑफ यू इज डेंजरस, आप सब में से एक एक करके डेंजरस हो, तुम सब में एक एक करके, ईच ऑफ यू, तुम सब में से एक एक करके, ईच ऑफ यू डेंजरस हो, तुम सब में एक एक करके खतरनाक हो। इसलिए हमने यहाँ पर ईच के साथ, देखिए ये जब भी आते हैं आइदर, नाइदर, ईच, मेनी, एवरीवन, और जब हमारा जो मोशंस होते हैं जब किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर नंबर वर्ब लगाते हैं। फिर सेकेंड है मेनी ऑफ एनिमल्स लव्स मी, लव्स, ये जो लव्स है वो क्या है हमारा कि लव तो हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का LOVE, लेकिन हमने इसमें S ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको हमें सिंगुलर नंबर वर्ब बनाना है। और क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पर मेनी का वर्ड का यूज़ किया गया है। भले मेनी ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में से, ठीक है ना, ये प्लूरल नंबर है, ये एनिमल्स जो है प्लूरल नंबर है, जो नाउन है हमारा एनिमल्स वो प्लूरल नंबर है, लेकिन हमें प्लूरल नंबर यूज करना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इससे पहले मेनी लग गया है।
मेनी लग गया है, इस वजह से हमने यहाँ पर सिंगुलर नंबर वर्ब्स का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रूल नंबर 4। अभी तक हमने रूल नंबर 3 को एडजस्ट कर लिया। रूल नंबर 4, व्हेन सम वर्ड्स इंडिकेट वर्ड्स अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड नंबर्स, देन वी यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। मतलब जब भी कुछ वर्ड्स जो या कोई नाउन होते हैं जो अमाउंट को, जैसे किलो, किलोग्राम अमाउंट हुआ, सॉरी नॉट अमाउंट, प्राइस, ठीक है, हाउ मच, कितना, ये अमाउंट हुआ। और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब किलोग्राम, सेंटीमीटर, ठीक है, जब ये यूज हो, या फिर क्वालिटी या फिर नंबर्स, देन वी यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब देखिए इसी में एक और स्पेशल रूल्स है, इसमें थोड़ा सा और कन्फ्यूजन वाली बात है। नन, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सारे वर्ड्स हैं। नन मतलब कोई भी नहीं, ये क्या है, क्वांटिटी है। अ लॉट ऑफ, ढेर सारा। प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में। मोस्ट ऑफ, बहुत सारे। तब क्या होता है, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड, मतलब ये सारे जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ये वर्ड्स जब भी यूज होते हैं, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर क्वांटिटी, अमाउंट, देन सिंगुलर नंबर वर्ब यूज्ड। ठीक है, जब ये अमाउंट के लिए, क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं तब हम लोग सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज करते हैं। बट लेकिन व्हेन दीज वर्ड्स वर्ब्स रेफर टू नंबर, देन वी यूज प्लूरल नंबर्स वर्ड्स। ठीक है, लेकिन जब ये रेफर करते हैं संख्याओं को, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि प्लूरल नंबर वर्ब्स का यूज़ करना होता है। लेट अस सी द एग्जांपल, अ लॉट ऑफ ट्राइज हैज़ बीन डन टू सेव हिज लाइफ, मतलब बहुत सारा प्रयास किया गया। अ लॉट ऑफ ट्राइज, हैज़ बीन, यहाँ पर देखो हैज़ बीन लग गया है, यू कैन सी हियर हैज़ बीन। क्यों? क्योंकि अ लॉट ऑफ ट्राइज, यहाँ पर ये जो अ लॉट ऑफ ट्राइज जो है किसी अमाउंट को, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन लग गया। सेकेंड है अ लॉट ऑफ गन्स, गन्स मतलब बहुत सारी बंदूकें, बंदूकों को हम लोग काउंट करते हैं। वी जस्ट काउंट दिस द नंबर्स ऑफ द गन्स, अ लॉट ऑफ गन्स, हियर यू कैन सी अ लॉट ऑफ, यही ऊपर अ लॉट ऑफ ट्राइज लिखा था, तो ट्राइज बहुत सारा प्रयास, प्रयास तो एक ही होता है ना आदमी का, लेकिन वो बार बार करता है। ये नहीं कि प्रयासों को अलग अलग प्रयास होते हैं, एक प्रयास नंबर ये है, प्रयास नंबर वो है, ठीक है। लेकिन गन्स जो होते हैं ढेर सारी, तो इनको नंबर्स में काउंट किया जा सकता है, इनको हम अमाउंट्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, इनको नंबर में काउंट करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब जो है वर लगाया, WERE, जो कि प्लूरल नंबर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। और हैज़ बीन सिंगुलर नंबर को प्रेजेंट करता है, यहीं पर हैव बीन रहता तो प्लूरल नंबर को रिप्रेजेंट करने लगता। ठीक है, लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। व्हाट डज रूल नंबर 5 सेज, व्हेन टू नाउन्स आर सब्जेक्ट इज एडेड बाय कंजक्शन, जब दो नाउन्स या फिर सब्जेक्ट, दो नाउन्स या सब्जेक्ट कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। और किस कंजक्शन, पहले, इससे पहले भी हमने कंजक्शंस पढ़ा था, और कौन कौन सा था, बट आल्सो, नाइदर नॉर, नॉट ओनली और एंड, उनके साथ रूल्स कुछ दूसरे अप्लाई किए थे हमने, लेकिन यहाँ पर कंजक्शंस आ गया एज वेल एज और विथ, जो रेड कलर में लिखा गया है वो हमारे कंजक्शंस हैं, दो ही कंजक्शंस हैं यहाँ पर। व्हेन टू नाउन्स आर सब्जेक्ट इज एडेड बाय कंजक्शन एज वेल एज एंड विथ, देयर आफ्टर वी यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, तब हम वहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जब भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज और विथ के साथ हमारे सेंटेंसेस कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है, पहला वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को यूज़ करते हैं। अगर मतलब पहला वाला सेंटेंस सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर नंबर ही होगा। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए एज वेल एज आ गया कंजक्शन, लेकिन इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं। दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक सब्जेक्ट है हमारा राम है और दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। ये सही नहीं चल रहा है, हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है। हिज फ्रेंड्स और पहला सब्जेक्ट से राम, राम इज द फर्स्ट, और दोनों जुड़े हैं किससे? राम और हिज फ्रेंड्स एज वेल एज से ना, एज वेल एज, ये जो ऊपर वाला कंजक्शन मैंने बताया था। अब ये जब दोनों टाइप्स के एज वेल एज या फिर विथ आते हैं, तो हम लोग पहले वाले सब्जेक्ट से, पहला वाला सब्जेक्ट इसमें राम है,
यू कैन सी हियर द फर्स्ट सब्जेक्ट इज राम, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वॉज। वॉज हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर होता राम वॉज प्लेइंग, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने वॉज लगा दिया। ओके, नेक्स्ट है बॉयज। बॉयज एज वेल एज हर्षिता आर सिटिंग इन द क्लास। हर्षिता यहाँ पर अगर आप देखोगे, इफ यू विल सी हियर द हर्षिता, इफ यू विल सी हियर हर्षिता, तो हर्षिता के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वर्ब, मेन वर्ब, सॉरी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगाना चाहिए था, लेकिन बॉयज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगा है। क्यों? एज वेल एज से जुड़ा है, तो हम लोग पहले वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को ही ऐड करेंगे। तो बॉयज़, बॉयज़ जो प्लूरल नंबर है, एक से ज़्यादा लड़के हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है। तो दोनों के जो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों सब्जेक्ट से हमारा जो वर्ब है वो एग्री कर रहा है, आर जो है एग्री कर रहा है बॉयज़ और हर्षिता के साथ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रूल जो ये बता रहा है कि एज वेल एज है, ठीक है। ओके, सो हम लोग इसको सबको इरेज कर देते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रूल नंबर, सॉरी थैंक यू आ गया, yes, rule number 5. So my dear students, these are the first some explanations and some concepts, some rules regarding to subject verb agreement. I hope that you all have understood very well this chapter, and I have used many of the times Hindi language so that you could understand it better, because this was a very burning topic and very living topic. Without understanding these topics, you can never make your sentences grammatically correct. I am sure that if you don't know the rules of subject verb agreement, then surely and surely you are going to make some mistakes in your sentences. Okay, so once again you can revise by watching this video, and I am willing to all of you thanks. And one more thing, जो कि मैंने 2 सेंटेंसेज इसमें लिखे हैं, और इस सेंटेंसेज से मेरा भी अभिप्राय है और आपका भी अभिप्राय है। लास्ट वाला चैप्टर मॉडल्स था, इसमें मस्ट भी हमने लगाया है, दिस चैनल मस्ट बी सब्सक्राइब, मतलब समझ रहे होंगे कि मैंने मस्ट बी क्यों यूज़ किया है। और एक और लगा लेता हूँ, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, करोगे ना? आई होप दैट यू ऑल सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ prosperous day, have a tremendous day to all of you. Thank you and bye.